Discussion on innovating for good, innovations driving positive change. It aims to shed light on the remarkable intersection of innovation and social impact. This insightful conversation brings together thought leaders, innovators, and experts who have harnessed their creativity to develop groundbreaking solutions that address pressing societal issues. With us on the panel, I would now like to call our panelists on the stage. Mr. Amitabh Tandon, Educational Specialist, UNICEF. A huge round of applause for all of our panelists as I call them. Ms. Bindi Patel, Founder and Director, EcoCorrect. Mr. Vinay Tiwari, Nutrition MIS Consultant, Women's and Children Department, Government of Gujarat. Mr. Dhiren Shah, Director, CIMS Hospital. Mr. Prashant Dave, Assistant Director, IT, Women's and Children's Department, Government of Gujarat. And our moderator for the panel, Ms. Yogita Bansal Ahuja, Founder, Director, Story Circle, Edusathi. A huge round for all our panelists and our moderator, please. I would now like to request Mr. Kunal Shah to felicitate Ms. Amita Tandon. Huge round of applause, please. I would now request Mr. Parth Doshi to felicitate Mr. Vinay Tiwari. Huge round of applause, please. I would now like to request Mr. Nishant Parmar to felicitate Ms. Bindi Patel. Applause, please. I request Mr. Parth Trivedi to felicitate Dr. Dhiren Shah. I would now like to request Ms. Niyati Bajpai to felicitate Mr. Prashant Dave. Applause, please. Now, to begin the first panel, I would take your exit. Over to you, Yogita ma'am. Okay. How much time do we have? So I'll have to time it accordingly. Ma'am, for the panel, you have 1 hour, 15 minutes. Okay. 11, as we had 1 a hour. little late. Yes. Okay, so Parth is saying 1 hour. You're Yeah, saying 1 1 hour, hour. 15 minutes. We'll have 1 hour. And then we'll see the audience. What is the cue that the audience is giving us? Hai na? All right. So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this time and space where we have these wonderful professionals and industry leaders who have all come together to form this panel where we are going to build conversations on how innovation can lead the way, create the impact, do social good, and empower communities. That's the theme of the conference as well. So Alan Kay said, the best way to predict the future is to
Created, absolutely right. I can see some of you mentioning that there. So let me start with our youngest panelist on board here today with us, and that is Bindi Patel. Bindi, you are a young entrepreneur with a passion for environment that we know, and you've used your education in science to innovate and build bioplastics, especially from the plant-based material. That's completely biodegradable. I hope I'm getting it right. And it's biodegradable both in soil and water. That's one amazing innovation, isn't it? Can we have a round of applause for her? That's one amazing innovation, Bindi, with the potential to replace plastic usage in our lives in a big way. What has been your source of inspiration? And what has been your vision when you were working on this particular innovative idea? आपका inspiration और आपका vision हम जानना चाहेंगे. Okay. Hello everyone. Good morning. I am Bindi Patel, founder and director of Ecorec Private Limited. So Ecorec का मतलब है इकोलॉजिकली करेक्ट चॉइस. सो हम सबको पता है कि हम हर साल बिलियन टन्स में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड एवरी गवर्नमेंट सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रही है बिकॉज एवरी सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक रिमेन्स फॉर 1000 ईयर इन द एनवायरमेंट and which is responsible for every type of pollution, right? So at Ecorec we manufacture biodegradable granules which is completely biodegradable in soil as well as in marine environment within a 3 to 6 month. So ये completely biodegradable है and any living organism के लिए ये कोई भी harmful नहीं करेगा. So ये हम सबके लिए और environment के लिए एक अच्छी इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल चॉइस है जो प्लास्टिक को रिप्लेस करता है. सो मुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो मैंने बीएससी और एमएससी गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है इन बॉटनी सब्जेक्ट प्लांट साइंस के ऊपर ही. सो मुझे पहले से प्लांट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी. सो ऐसे ही इवेंट्स आती थी हमारे कॉलेज में भी कि आपको कोई भी मनपसंद आइडिया के ऊपर पोस्टर या पीपीटी प्रेजेंट करना होता है स्टूडेंट्स को, राइट? सो ऐसे ही एक इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था और जस्ट लिख दिया था पोस्टर में कि मुझे प्लांट मटेरियल में से ऐसा कुछ बनाना है जो आज के प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि प्लांट साइंस में मुझे इंटरेस्ट था और आज के प्लास्टिक को रिप्लेस करना है हम सबको पता है, राइट? सो ऐसे ही जस्ट थॉट आया एंड मैंने वो पोस्टर में लिख दिया. एंड एक जूरी मेंबर आए और उन्होंने पूछा कि आपने ये लिख तो दिया पोस्टर में लेकिन क्या आप इसको प्रूव कर पाओगे? तो वो मुझे दिन आज भी याद है कि सितंबर 2018 था तब, एंड मैंने कभी इतनी मतलब कॉलेज की कोई बात सोची नहीं, बट मुझे वो आज भी याद है. एंड घर पे जाके मैंने उसी दिन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि प्लास्टिक के कितने डिसएडवांटेज है, प्लास्टिक से क्या हार्मफुल चीज़ें हैं. एंड मैं बता सकती हूँ कि नॉर्मल पर्सन को कभी भी नहीं पता होता है कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है. जस्ट एक बार आप सर्च करना और देखना कि प्लास्टिक से कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, राइट? सो उसके बाद मेरा इंस्पिरेशन वो ही था. जितने जितने मुझे डेटा वो मिलते गए, मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा जो इंस्पिरेशन था, मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता जा रहा था. देन मैं किचन एक्सपेरिमेंट करने लगी, देन लैब स्केल, पायलट स्केल, अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम एंड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इन यूएई मार्केट. सो ऐसे करते मुझे इंस्पिरेशन मिला है कि प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेज है वही से मिलता है इंस्पिरेशन. एंड विज़न क्या है? सो विज़न ये है कि इकोरेक से हम इंडिया को एंड पूरे वर्ल्ड को प्लास्टिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री एंड सस्टेनेबल फ्यूचर देना चाहते हैं. थैंक यू. वेल सेड. आई एम श्योर बिंदी ने जो कहा हम हमारे ऑडियंस में बैठे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर करने की सोचते हैं, उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा. थैंक यू सो मच बिंदी. Moving on, if you look at history, innovation doesn't come just by giving people incentives. It comes from creating an environment or creating environments where the ideas can connect. That was said by Stephen Johnson, a science author. And Amita ji, let me come to you now. You are an education specialist at UNICEF, Gujarat office, and earlier in Delhi NCR. What do you see
as the key role of organizations like UNICEF in driving positive change in the lives of our children through education. Any specific, and also there's a follow-up question. Let's first stick with the first one. Yeah. Thank you so much for this question. आप सब लोग को, one is I would like to know whether it is Hindi or English. What would you prefer? Hindi, English? Okay, so I'll use both the languages, yeah? Okay, so I would think that many of you would be familiar with UN and UNICEF. The important thing that I would like to highlight here, especially since Yogita asked that how do we create that system? So UNICEF and other UN organizations, they work with the government to capacitate the government to create the ecosystem, as you said, so that each child, adolescent and young person is able to actualize his or her rights. तो यूनिसेफ पूरा जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए. और हालांकि इन्होंने एजुकेशन के बारे में पूछा, बट यूनिसेफ का मैंडेट जो है वो एजुकेशन से बियॉन्ड भी है. हेल्थ, न्यूट्रिशन, अभी विनय कुछ बात करेंगे इस बारे में, वॉश फैसिलिटीज़, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी. But then when I say strengthen the government's capacity, what do we do? And how do we focus especially in the area of education, if you would like to know more about? तो चाहे पॉलिसी हो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, और प्रोग्राम्स हों जैसे कि पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, इन सब में हम सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी डिज़ाइन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इसमें सरकार के साथ मिलकर हम काम करते हैं. She also wanted to know how do we create the ecosystem. Ecosystem जो है वो पूरा किसी एक कार्य को करने से नहीं तैयार होता है. We have to have the enabling policies in place. We have to have right programs in place. But then with the programs, we also need to have the capacity in the system to be able to implement those programs. तो क्या हमारी पॉलिसीज़ में बच्चों के अधिकारों पर पूरा महत्व दिया गया है? जो प्रोग्राम्स हैं क्या वो दूर दराज तक हर बच्चे तक पहुंच रहे हैं? और क्या हमारे जो फंक्शनरीज़ हैं, चाहे एजुकेशन फंक्शनरीज़ हों, ICDS, चाइल्ड प्रोटेक्शन या कोई भी दूसरे अतिरिक्त फंक्शनरीज़ हों, उनकी क्षमता का निर्माण करना, जिससे कि जो पॉलिसीज़ एनविसाज करी गई, बनाई गई, और जिस प्रकार से प्रोग्राम बनाए गए, जिस विज़न के साथ, वो उसी विज़न के साथ ज़मीन पर उतरे और हर बच्चे तक उन प्रोग्राम्स का लाभ पहुँचे. So when we are talking about the creation of the ecosystem, it's about right policies, it's about right child-centered programs, it's about the capacities of the functionaries to implement the programs and also monitor the programs. तो उसमें जैसे आपने ये भी कहा कि कोई उदाहरण मैं शेयर करना चाहूँगी कि क्या हमने काम किया और कैसे. तो जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो नेशनल लेवल पर हों या स्टेट लेवल पर हों, एक समान नहीं हो सकते क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है. हर बच्चे का भी कॉन्टेक्स्ट अलग है. हमारे देश में तो अलग अलग राज्य हैं ही, पर यदि हम गुजरात राज्य को भी देखें तो कहीं हमारे पास कच्छ का ज़िला है, कहीं हमारे पास ट्राइबल बेल्ट है, कहीं हमारे पास अर्बन पुअर सेटिंग्स है, कहीं पेरी अर्बन एरियाज़ हैं. So the idea and the intent is that it's not just one program or policy that is developed at the national level and implemented across the states. उस प्रकार हम हर बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे. पॉलिसीज़ हमें लार्जर मैंडेट देती हैं और प्रोग्राम्स अल्टीमेटली जब इम्प्लीमेंट होने की बात है, वी हैव टू एनालाइज व्हाट डेटा वी हैव एंड यूजिंग दैट डेटा डिफरेंशियल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने की जो ज़रूरत है, दैट्स वेयर वी ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल. फॉर एग्जाम्पल इन द एजुकेशन प्रोग्राम UDICE एक नेशनल लेवल डेटा है. अभी हमारे राज्य में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें गुजरात सरकार ने इस तरीके का एक सिस्टम
तैयार किया है कि हर बच्चे का डेटा हमारे पास राज्य लेवल पर उपलब्ध है. Now using that data to finally see what is the challenge a particular child is facing and planning interventions accordingly is a huge innovation that we are supporting. क्योंकि यदि हम एक ही प्रकार का प्रोग्राम चला दें तो उससे हर बच्चे की नीड नहीं मीट होती. मान लीजिए कच्छ में कुछ ऐसी हैबिटेशन है, पॉकेट हैं, या बनासकांठा में कुछ ऐसी हैबिटेशन है, पॉकेट हैं जो दूर दराज है, या फिर उस बच्चे की फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी है दैट द चाइल्ड कैन नॉट कम टू स्कूल. सो इफ़ वी थिंक दैट देयर इज़ वन इंटरवेंशन जो सबके लिए लागू पड़ेगी, वैसा नहीं होता. So how we design, how we implement, how we plan our programs, इन सब में innovations की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है और इसीलिए हमें innovative mindset रखना भी ज़रूरी है. And for that, UNICEF is supporting the government in implementing life skills program, digital literacy program, financial literacy program, and also a career guidance portal, so that all our young children, adolescents and people here can develop those skills which can further enable them to become innovators. That's all for now. Thank you so much. आपकी बात सुनकर अमिता जी एक अंग्रेज़ी की कहावत याद आ गई, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. तो हर जगह की ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट के साथ आप पार्टनरशिप करके उनकी सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में. थैंक यू सो मच. चलिए अभी चलते हैं विनय जी की तरफ. विनय जी कहते हैं कि ज़िंदगी का यही है आधार, बच्चों के खाने में शामिल हो ढेर सारा पौष्टिक आहार. तो आप समझ गए होंगे कि मैं हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से यहाँ बात करने वाली हूँ अभी. सो ही इज़ द विनय जी फ्रॉम your experience as a nutritional consultant with Department of Women and Child Development. What are some of the socially good innovations जो आपके हिसाब से महिलाओं और बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए एक चमत्कार जैसे साबित हो रही हैं? So live examples if you can share with us, that'll be great. गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार. जो मैडम ने, योगिता जी ने पहले एक हिंदी में जो बताया, आई थिंक दैट अप्लाइज टू मी एंड आई होप दैट अप्लाइज टू यू ऑल ऑल्सो. आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट लेटर यू विल कम टू नो कि भाई मैंने क्या बोला. एक योगिता जी ने बात की कि एक्चुअली मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ. आई एम नॉट दी न्यूट्रिशनिस्ट बट आई एम वर्किंग एज ए MIS कंसल्टेंट फॉर न्यूट्रिशन. सो इट मीन्स वाई एंड वेयर एंड हाउ वी कैन अप्लाई टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन. करेक्ट. सो गवर्नमेंट of Gujarat and Government of India both are implementing various schemes for improving the nutritional and health status of children as well as women and as well as the adolescent girls. I am not sure, but many of you will be aware about these schemes and some of you will not be aware of schemes of the Government of Gujarat. I am not the serious one person, so I will not talk alone. ठीक है, फर्स्ट तो ये है, क्योंकि ऑफिस में भी यही बोला जाता है, मेरे को देख के लोग सीरियस कभी होते ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सीरियस. ठीक है. और दूसरा, वॉट एवर द प्रेशर अप्लाइज टू मी, आई कैन हैंडल दैट एंड वापस नहीं देता हूँ, जस्ट डाइजेस्ट. नाउ आई थिंक यू आर लुकिंग हैप्पी. सो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात चला रही है फॉर दी different categories, but some of us knowing about the schemes and some of us trying to know about schemes. कोई किसी एक सो में क्वेश्चन करूंगा, जस्ट आई विल से 1 सेकेंड और थर्ड रो. यस, हाथ ऊपर करो. आंगनवाड़ी के बारे में सुना है? आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल. हाँ, सो डोंट बी सीरियस.
ठीक है, आई एम आस्किंग ओनली फॉर सिंगल पर्सन। आंगनवाड़ी सुना है? क्या क्या सर्विसेज देते हैं? आटा, बच्चे, हाँ, देन अगेन अगेन, नहीं करेक्ट है, यू आर करेक्ट, बट अगर 0 से 100 में जाना हो मेरे को तो आई हैव टू स्टार्ट विथ 1, 2 एंड 3, सो शी हैज स्टार्टेड विथ 1, यू विल ऑल कम इन टू द 100। हाँ, नेक्स्ट, बच्चों को कुछ आटा देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और अच्छा, नाउ आई एम टर्निंग बैक। किसी के घर के आसपास या आजू बाजू में किसी ने आंगनवाड़ी देखा है? यस मैडम, आपके पीछे, यस प्लीज। हाँ, बालको ने त्या भणावવામાં આવે। हाँ, नेक्स्ट, हाँ, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्कीम्स बहुत सारी हैं, इम्पैक्ट भी बहुत सारा है, मेहनत भी बहुत सारी होती है, बट अल्टीमेट जो पहुंचना चाहिए या जानना चाहिए वो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स डिडंट नो। जैसे इन्होंने बताया आंगनवाड़ी एक बहुत सारी स्कीम्स है। दिस इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एज वेल एज द प्री स्कूल एजुकेशन at the Anganwadi and at the local level. It means within the villages. अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। नाउ आई एम कमिंग टू दी बैक टू आवर सिनेरियो। जैसे मैडम ने बात किया इकोसिस्टम्स, न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली कि भाई मैंने खाना खा लिया। जब मैं छोटा तो नहीं बोलूँगा, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब मैं कुछ 10 चपाती खा सकता था। नाउ आई एम डाउन। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरा तो 4 में है, बट न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली गेटिंग फुल योर स्टमक। न्यूट्रिशन मीन्स जो आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो टाइम पे और सब चीज़ें मिलनी है, दैट इज न्यूट्रिशन। मैं आईटी का बंदा होके न्यूट्रिशन में घुस गया और न्यूट्रिशन को ये भी कैसे इम्प्रूव करना है, नाउ आई एम लुकिंग इनटू इट, करेक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, बट अल्टीमेटली अभी आपने सबने कुछ सुना होगा, NFHS करके आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अभी रिसेंटली जो डेटा इसका रिलीज हुआ है दैट इज NFHS 5। अगेन द सिचुएशन ऑफ गुजरात in terms of anemia, in terms of underweight, in terms of wasting, stunting, same indicator में हम stagnant है। We are not improving. Why? Because हम लोग यही सोचते हैं कि हमने खा लिया, but where is the nutrition? Where is the value? Nutritive value? ये नहीं है। Because हमारा जो हैबिट है खाने का, that is not up to the mark। बहुत सारे लोग यहाँ मैं देखता हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम दी MP, बट 10 साल से हूँ। सो मैडम कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, नाउ आई कैन स्पीक ऑल्सो। आप लोगों को पता होगा, बधा जाड़े छे। सो यहाँ का हैबिट मेरे को पता है कि क्या है। सुबह उठ के खाखरा या चाय, बट विद इन दी कॉम्बिनेशन, चाय के साथ कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होगा, है ना। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते थे, ये कोई भी हॉट जो बनता है ना, जैसे पराठा हो गया, चपाती हो गई, पोहा हो गया, जनरली ये ईट करते हैं। सो हैबिट इज़ समथिंग डिफरेंट। और स्पेशली अगर हम रीजनल की बात करें इन दी स्टेट ऑफ गुजरात, तो ट्राइबल में खाने का स्टाइल अलग है देन दी सौराष्ट्र रीजन। द सौराष्ट्र रीजन, एक चीज़ मैंने देखी है, कुछ भी खाने को दे दो, छाछ तो पहले भर के दे देंगे, करेक्ट। सो दैट्स इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू। मैं इसलिए बोला था पहले ही कि आई विल नॉट बिकम सीरियस एंड नाइदर विल टू यू। तो न्यूट्रिशन वैल्यू सौराष्ट्र का जो हम NFHS 5 का सर्वे देखते हैं, दैट इज शोज कि भाई जो सौराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट इज एट पार। मतलब इंप्रूवमेंट ऑलवेज सब में ज़रूरत होती है, बट दे आर बेटर देन दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स।
अगर वही मैं ट्राइबल रीजन की बात कर दूं, लाइक दाहोद, पंचमहाल, देन डांग, वलसाड़, तापी, नर्मदा, सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. क्यों? क्योंकि उनका हैबिट अलग है. दे आर यूज टू टेक कॉर्न, मकई का रोटला या ज़्यादा खाते हैं, बट इन दी सौराष्ट्र रोटला. सो दैट इज न्यूट्रिटिव वैल्यू. अभी ऑलरेडी आपको पता हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, पोस्टर देखते हैं. अभी तो G20 का लोगो आएगा, उसके बाजू में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आएगा. सब लोग जानते हैं मिलेट्स क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं. हाँ, यस तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, बट सो जस्ट गो फाइंड क्या मिलेट्स होता है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए, एंड हाउ यू कैन incorporate into your daily routine. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर ले लिया, उसमें ज्वार का आटा ले लिया, बाजरे का आटा ले लिया, मिक्स कर दो, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज. थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाने में, बिकॉज कुछ समय के लिए मैं भी बनाता हूँ, सो आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है. सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स देती है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात in the last year has launched Mukhyamantri Matru Shakti Yojana, that is for the pregnant women and to the children of up to 2 years, but only for the first child. That is our only one condition. Anyone who is taking benefit of that scheme, who is here? कोई एलिजिबल ही नहीं होगा. So basically MMY, that's provide nutrition packets in terms of ration, that is chana, tuar dal and oil. इसी तरह की 10, I am only saying one scheme. बहुत सारी schemes है जो ये provide करती हैं for the improvement of nutrition. Later we will talk in detail, but Yogita is now seeing to me. So thank you. थैंक यू विनय जी. विनय जी ने, मैं आपको याद दिला दूं, इन्होंने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग में बोला था मैं न्यूट्रिशन का बंदा नहीं हूं, मैं MIS देखता हूं, और इन्होंने सिर्फ न्यूट्रिशन की बात की. इफ़ यू रियलाइज इट, उन्होंने हमें मिलेट्स भी समझा दिए, उन्होंने हमें आंगनवाड़ी की इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में समझा दी. सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी एज एन आम जनता needs to be aware of it. So thank you very much. So moving on to his colleague, Prashant ji, who is an assistant director with the IT at the Department of Women and Child. So they're both colleagues sitting on my left and my right, beyond Dr. Dhiren. So Prashant ji, आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ MIS डेटा है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में बच्चों को, महिलाओं को या जेंटलमैन को भी न्यूट्रिशन कितना जा रहा है. उसी तरह से आपके डिपार्टमेंट का क्या योगदान रहता है टू हेल्प एड द MIS एंड द अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटिस्टिक्स, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमारा आज का थीम इनोवेशन है, हाउ डू यू bring in innovative solutions in the IT to help the aam janta like they and me? Thank you for calling me. Like as being we are all Gujaratis, we love the free buys and bonus. तो मैं इस पूरे पैनल का बोनस हूँ आज का. I was not in list. तो अभी मेरे कलीग थे यहाँ पे विनय भाई, उन्होंने कुछ वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बहुत सारी बात की हुई है. तो बेसिकली जब हम गवर्नमेंट हम जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट का स्कोप होता है, गवर्नमेंट का जो स्कोप होता है वो बड़ा वाइडर होता है. लाइक व्हेन वी टॉक इन द पर्सपेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, देन वी टॉक अबाउट ऑल द सिटीजन्स. तो जो मैडम बोले थे, अमिता मैडम, उन्होंने बोला था कि भाई ट्राइबल से लेके अर्बन स्लम, कुछ कच्छ का अगर बनी एरिया है तो वो सब कुछ उस पर कवर हो जाता है. व्हेन यू कवर मेजॉरिटी ऑफ एरिया, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको इंश्योर करने में प्रॉब्लम आता है. तो मैं आज जो देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे सामने,
I see you all as a being a next generation entrepreneur या फिर innovator, right? तो आपके पास गवर्नमेंट में बहुत सारे स्कोप है. लाइक आई गिव यू वन सम एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि भाई हम सोचते हैं कि चलो इतना कर दिया, इसके आगे क्या, अभी कंप्लीट हो गया? नहीं. देर इज़ ए नेवर ए एंडिंग ऑफ एनी इनोवेशन, एनी थिंकिंग. लाइक मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो विनय भाई ने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था. लाइक हम देते हैं न्यूट्रिशन फूड थ्रू आंगनवाड़ी. अभी ये फूड हम जब दे रहे थे, गवर्नमेंट थॉट ऑफ लाइक इसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं. देन वी इंट्रोड्यूस ए GCMF अमूल, कि अमूल के थ्रू इसको अच्छे से बना के न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ हम इसको सप्लाई करें. जब ये सप्लाई करने की बात आती है तो सप्लाईज कवर द सप्लाई चेन इश्यूज. लाइक टाइम पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया. जब मैं पहुंचने की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे द्वारका से लेके डांग से लेके कच्छ तक. तो उसमें बहुत सारी जगह पे सप्लाई चेन के जो इनोवेशन आते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, उसके इंश्योरिटी आती है, एक राइट पीपल के हाथ में आया है नहीं आया है ये आता है. तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत सारे इनोवेशन से हम सोल्व कर सकते हैं, राइट. तो ये एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चांस है. लाइक मैंने कहीं पे उसको पहुँचा दिया है, बट देर इज़ ए नेक्स्ट लेवल चांस कि आप उस पर सोच सकते हो कि भाई हाँ, दिस इज़ द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ वी कैन एंश्योर डेट द गवर्नमेंट सर्विसेज reach to the citizen very better way, make the citizens aware about the services. These all are can be shown through the technology only, because the technology is only means कि भाई आपको, say for example, अब we take one metaphor example, like मुझे CM सर के साथ बात करनी है, राइट. तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनको रीच करना पड़ेगा ऑफिस, देन मैं मिल सकता हूँ. ट्विस्टर से आप डायरेक्टली उनके हैंडल पे लिख सकते हो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है. और गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यूस सीइंग द प्रॉब्लम्स कि भाई जो रिपोर्ट हो रहा है तो उस पर एक्शन भी होता है. सो टेक्नोलॉजी ब्रिज द गैप्स. वो जो गवर्नमेंट है उसको सिटीजन से एकदम नज़दीक लेके आता है. तो देर आर मैनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स डेट कैन बी सॉल्व. प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पे, उसको कैसे सॉर्ट किया जाए. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट वीमेन चाइल्ड इज मेनी एस्पेक्ट. इसमें एक एस्पेक्ट न्यूट्रिशन का है, तो दूसरा एस्पेक्ट गर्ल्स के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देने का है. तो इसमें भी बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं. लाइक यू थिंक ऑफ दी, आपने कभी सोचा कि भाई अहमदाबाद के सारे एरिया को गर्ल्स सेफ्टी वाइज इसको मार्क किया जाए कि विच आर द वेरी सेफ एरिया टू फॉर द गर्ल, विच आर वेरी प्रोन टू डेंजरस, राइट, वेयर पुलिस नीड टू सी एंड कॉम्बैट वेरी ओपनली. रात को किस जगह पे ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है. तो दिस ऑल थिंग्स कैन बी सोल्व थ्रू द टेक्नोलॉजी. दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई अगर हम गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो हम जो डिस्ट्रीब्यूट वुमेंस होते हैं उनको एक सेफ्टी देते हैं थ्रू मीन्स ऑफ पेंशन. वह हम जब पेंशन देते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई इसको पेंशन से पूरी लाइफ नहीं चलने वाली, तो वो अपने पैर पे कैसे चल सकती है. तो हम उसको आर्टिसन बना के उसको बिजनेस डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं. लाइक अभी एक राखी मेला चल रहा था अहमदाबाद में, यू मस्ट ऑल हैव नोटिस डेट. तो ऐसे हम आर्टिसन को, उनके आर्ट को, उनके हुनर को बढ़ाने के लिए सोचते हैं. वो सारा भी हम टेक्नोलॉजी में से करते हैं कि भाई उनको जब अगर स्टॉल लेना है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करने से लेके उसका रेंडरिंग सब कुछ इसमें ऑनलाइन से होता है. तो थॉट इस कि भाई जो भी चीज़ें IT से हो सके उतनी चीज़ें मैक्सिमम IT से सप्लाई करो, ताकि सिटीजन अपने घर पे बैठ के वो सारा चीज़ें एक्सेस कर पाए. इसको गवर्नमेंट टर्म से अब धीरे धीरे सिंगल सिटीजन पोर्टल बोलना शुरू किया हुआ है. सो देर आर मैनी स्कोप्स फॉर ऑल यू पीपल टू थिंक एंड एक्ट ऑन दैट डायरेक्शन. थैंक यू वेरी मच. तो गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ देना चाहती है. And all of you young innovators, students who are thinking of, you have ideas with you, हमें ये सोचना है कि हम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ें जिसको हम इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर सकें और फिर गवर्नमेंट के पास जाएं
और उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं. अमिता जी ने बताया यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है जो कि प्रो इनोवेशन है. सो काम अब हमारा भी है कि हम आगे बढ़ें. गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ा दिया है, अब पकड़ने की बारी हमारी है. सो मूविंग ऑन, thank you Dr. Dhiren Shah first and foremost for your patience. One round of applause for Dr. Dhiren Shah, our fifth and final panelist, जो बहुत patiently सबकी बातें सुन रहे हैं अभी तक. So he is the director of SIMS Hospital in Ahmedabad, and we know, सबको पता है, SIMS is one of the most trusted hospitals that provides personalized care and superior patient experience. इन्होंने मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे नहीं दिए, वैसे मैं बता दूं, बट दिस इज व्हाट हैज बीन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्रांड. As one of the key leaders of the health industry, especially in Gujarat, how do you see the role of innovative products, especially coming from young health-focused startups from our very own state of Gujarat? यहाँ बैठे बहुत सारे, मैं तो बच्चे ही बोलूँगी, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, they are already thinking about how can we improve the health of the entire nation through different innovative products and solutions. So is SIMS using some of those innovations for a better patient care experience? Yeah, thank you very much. And first of all, I would like to extend my gratitude to YI for giving me this platform to discuss about the innovation in the healthcare arena. First and foremost thing, मैं ये बोलना चाहूँगा कि I am so happy and excited that future of India is going to be great. And the reason only one is, there is no sitting space over here. This shows that our young generation, the young minds, the millennials, the Gen Z group, they all are excited and they want to innovate and they are ready to go into the new world. So congratulations to you all people and best wishes that you become a great scientist, and probably 2030, 2040, India will be the superpower of the world. First and foremost thing, how many of you are using Fitbit? How many? Very few. Oh, I think so. Then it's the right time. There needs to be, needs to be talking about innovation. First, what is innovation? Innovation का मतलब क्या है ये समझो पहले. Can anybody tell me about innovation? What is innovation? No. So let me tell you, there is a difference between invention and innovation. Invention is what you find out something new which is not there in the prevalent society. So for example, she did an invention. So plastic out of the plants. So great, that is invention. What we are talking about is innovation. Innovation no उसका मतलब ये होता है कि कोई एक चीज़ कोई एक सेक्टर में यूटिलाइज हो रही है, वही चीज़, वही टेक्नोलॉजी, वही आईटी की चीज़ या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे सेक्टर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. So for example, there is lot of innovations in the field of IT. Can that be utilized in the healthcare industry also? That is innovation. So young people, you have to understand, there are a lot of things that are being happening around you. आपके आसपास बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है, उसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे इनोवेट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है. So from our perspective, from the SIMS perspective, we are probably the leaders in using the innovative techniques in the field of lot of medical fields. So for example, कार्डियक फील्ड है तो कार्डियक फील्ड में हमने OCT यूटिलाइज किया, आईवस किया, छोटी छोटी आर्टरीज में से कैसे अपन फोटोग्राफ ले सकते हैं, कैसे उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वी स्टार्टेड इन 2016. अगेन इट वाज प्रिवेलेंट एल्सवेयर, बट हाउ कैन वी establish in Gujarat? So these are all innovations. Another very important innovations that we have nurtured or that we have utilized in our hospital is the remote monitoring. आपको पता है ये Fitbit जो है
इट इज़ एन इनोवेशन. आज से 5 या 10 साल पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर मेजर कराना होता, या आपका पल्स देखना होता, या आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना होता, तो आपको डॉक्टर के पास जाना था. सी द वर्ल्ड हैज चेंज इन लास्ट 5-10 ईयर्स सिग्निफिकेंटली. आज आप यहाँ बैठे बैठे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, अपना शुगर चेक कर सकते हो, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकते हो. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर यही डेटा अगर आप कोई सेंटर में बेच सकते हो, तो देन डॉक्टर सिटिंग एट दैट एरिया कैन एनालाइज योर डेटा एंड ही विल गिव यू एन इंटीमेशन के समथिंग इज रॉन्ग, काइंडली कंसल्ट अ डॉक्टर इमीजिएटली. That is what is called remote monitoring. And friends, in coming another 5 to 10 years, let me tell you, remote monitoring is going to expand or explode like anything across the world. आज हमारे हॉस्पिटल में भी हम पेशेंट्स को कितना जल्दी आईसीयू में से रूम में शिफ्ट कर सकते हैं और रूम में से कितना जल्दी घर भेज सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे. एंड वन यंग चैप who started a biosensor technology in Bangalore, we utilized that technology कि जिसमें एक बायोसेंसर लगा हुआ है जिसके थ्रू पेशेंट का ECG, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, ये सब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है. और वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मेरे मोबाइल पे भी आता है. आई कैन सी वॉट इज़ हैपनिंग इन दैट पेशेंट इन रूम नंबर 201 और इन 210. मेरे को अभी भी पता चलता है. So, analyzing that data, sitting over here, so that the patient can go out to his own home at the earliest. उससे क्या benefit होता है? First, you are reducing the cost of the patient. Earlier the patient is out of the hospital, better is financially and psychologically. तो ये दो aspect बहुत important होते हैं जब आप patient को treat करते हो तब. Second very important thing is, it is patient-centric or patient-specific innovation. How can I increase or how can I make the life of a patient easier? अगर आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में भी जाओगे ना, आप अगर आँख कान खुले रखोगे तो आपको बहुत सारे एरिया दिखेंगे कि जहाँ पे आप इनोवेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो. So there are lot of areas in the healthcare industry. Another very exciting, very interesting area which is coming up in the innovation area is the artificial intelligence in medical science. I don't know कितने लोगों को पता है, there is a solution right now which Google has created कि जिसमें आप आपके symptoms ऐड करो, आपके investigations ऐड करो, अपलोड करो और आपको वो डायग्नोसिस दे देगा और वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा. एंड लेट मी टेल यू, 80% ऑफ द डॉक्टर्स वर्क इज अ रूटीन वर्क, कि जिसमें और कुछ नया दिमाग लगाने का है ही नहीं. मेरे को 80% ऑफ द बीमारियां जो होती है उसमें रूटीन ट्रीटमेंट ही कराना है. तो वो अगर 80% काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा, देन लेट मी टेल यू, जो अभी डॉक्टर्स के ऊपर लोड है इतने सारे पेशेंटों को देखना, बिकॉज डे बाय डे द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, then that doctor can concentrate only on that 20% patients who really require human intelligence, who really requires experience of that doctor and can give a better outcomes, instead of wasting that time in that routine 80% of the patients. So that is again a fantastic innovation. Watson, अगर आप डालेंगे Google पे, Watson is an app in which 80% of your work of the doctor can be taken over by that artificial intelligence. Third very important thing which is coming up is the innovation in the field of surgical practice, robotic surgery. सुना होगा robotic surgery, तो robot में क्या है? How can I develop a robot so that the surgery can be made easier, so that the recovery can be made faster? So Da Vinci robot है, so 2 या 3 small incision से पूरे abdomen की surgery, heart की surgery, brain की surgery भी कर सकते हैं, so that the patient is out back home within probably 24 hours. And जो major innovation हमने जो सिम्स में भी establish किया है कि open heart surgery होती है, wall replacement करना पड़ता है, तो instead of open heart surgery,
just without a cut in the body, I can replace the wall. हार्ट के अंदर के जो वाल होते हैं वो भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ without the surgery, just the type of technology that you use for angioplasty also. So that is innovation. Again, a part utilized in some area, you extrapolate it and utilize in this area. So I think so there is lot of things, friends, around you. आँख कान सब खुले रखो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएंगे और आईटी इंडस्ट्री को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे पेशेंट के बेनिफिट में आप यूटिलाइज कर सकते हो वो आप सोचिए. एंड लेट मी टेल यू, आप आइए हमारे पास, डिस्कस करिए. वी हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो व्हिच you people can sort it out by discussion. Thank you. Wonderful. Thank you so much, Dr. Dhiren. Thank you. Okay. So moving on, in the interest of time, I will request each of our panelists to limit their response to 1 minute, please. Bindi, I'll come back to you. ये स्पेशली जो हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यंग पोटेंशियल और करंट एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए है. उनकी आवाज़ शायद आप तक पहुंचा रही हो बिंदी. हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कॉलेज की कैंटीन में शुरू होते हैं या हॉस्टल के कमरों में शुरू होते हैं बातचीत करने पर, और शायद वहीं दम तोड़ देते हैं, बाहर कभी आते ही नहीं. या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद कोशिश करते हैं कुछ देर तो अपने इनोवेटिव आइडिया पे काम करने की, बट फिर ज़िंदगी ओवरटेक कर लेती है और फिर उनका भी हौसला टूट जाता है. तो आपने बिंदी, since you are a recent pass out of college and you're already a successful entrepreneur, आपने अपने बायोप्लास्टिक वाले इनोवेटिव आइडिया की शुरुआत, उस सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत कैसे की थी? थोड़ा सा संक्षेप में, ब्रीफ में आप बताएं ताकि हमारे स्टूडेंट इनोवेटर्स जो यहाँ बैठे हैं उनका भी मार्गदर्शन हो सके. सो मैं मेरी जर्नी ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि आइडिया से कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे हम अभी कर रहे हैं, राइट. सो मैंने जैसे बताया कि मुझे वो इवेंट से एक आइडिया आया था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनाना है. देन मैं सर्च आउट करने लगी, मुझे शॉकिंग डेटा मिलते गए. देन मैं किचन एक्सपेरिमेंट करने लगी. जब कॉलेज का लास्ट ईयर था तो वो मैं अप डाउन करती थी. मैं कड़ी रहती हूँ महसाणा में, 2 घंटे अप डाउन करके गुजरात यूनिवर्सिटी आना, देन रिटर्न जाना 2 घंटे. बट रात में भी मैं वो किचन एक्सपेरिमेंट करने लगी क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट था, राइट. एंड घर पे जाके वो ही करना जब सब सो जाए रात में. देन सुबह उठ के वो सबसे पहले वो ही सैम्पल्स देखना कि वो इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए. एंड एवरी सिंगल डे, नॉट सिंगल डे भी मैंने गैप नहीं रखा था जब मैं ये किचन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में. तो हर रोज़ मैं देखती थी कि भाई सैंपल टूट गया है, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, हो रहा है. तो 3 महीने हुए कि मैंने मैन्युअली एक जैसे रोटी बनाते वैसे सैंपल बना लिया. मैं स्ट्रेटनर से सील करती थी ताकि वो पता चले कि वो उसमें सीलिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, राइट. 3 महीने के बाद एक ऐसी कैरी बैग बनी जो मैन्युअली थी बट ट्रांसपेरेंट थी, सीलिंग प्रॉपर्टी थी, इलोंगेशन था, सब कुछ था उसमें, राइट. सो ये हुआ मैन्युअल की मुझे इंटरेस्ट था एंड मैं करती थी. मुझे कोई एम नहीं था कि राइट मुझे स्टार्टअप करना है. मुझे इवन पता भी नहीं था कि स्टार्टअप क्या होता है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगी कि यूनिसेफ एंड एलिक्सिर फाउंडेशन जो ऐसे इवेंट्स करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि स्टार्टअप क्या है. जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था, राइट. सो वैसे करते वो तो एक मैन्युअल प्रोसेस हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे जीओसेक में इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला. हम सबको पता है कि ऐसे इंक्यूबेशन सपोर्ट अभी अहमदाबाद और बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है. तो वो इंक्यूबेशन सपोर्ट के बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये मैन्युअल मेथड से मुझे मशीनरी में लाइक प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा ताकि प्लास्टिक की मार्केट साइज़ भी बिलियन टन्स में है. क्या हम मैन्युअली उसको कवर कर पाएंगे? नो, नॉट इवन 1%, राइट. सो उसको मैंने मशीनरी प्रोसेस में कन्वर्ट करने का सोचा, और मैं बता सकती हूँ कि 2019 में मुझे इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला था. उसके बाद मैंने SSIP की ग्रांट ली जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी बोलते हैं, 2 लाख की, जो गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. देन सबसे पहले मैंने गुजरात गवर्नमेंट से ही सपोर्ट लेके पेटेंट रजिस्टर करवाई, जो अभी हमारा ग्रांट अप्रूवल भी आ गया है रिसेंटली. देन उसके बाद मुझे गुजरात गवर्नमेंट कमिश्नर से ऐसे स्टार्टअप असिस्टेंट स्कीम से 21 लाख की ग्रांट मिली.
ट्रांचेस कर करके। सो ऐसे ही मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और मुझे ग्रांट का और पेटेंट का इवन टीम का बहुत सपोर्ट मिला है। सो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए, अगर आपको कोई भी एरिया में इंटरेस्ट है और आप ऐसी कोई भी चीज़ मतलब इन्वेंट और इनोवेट करना चाहते हैं, तो अभी जो गुजरात गवर्नमेंट इवन इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है वो आई थिंक सबसे बढ़कर है, राइट। सो आप बहुत इजीली उसको कर पाओगे जहाँ तक मैं सोचती हूँ। हाँ, चीज़ें डिफ़िकल्ट बहुत है, सोचना आसान है, राइट। सो मुझे भी बहुत सारी दिक्कत आई, मैं बता सकती हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल मेरे फेल हुए थे और अभी भी बहुत सारी दिक्कतें है प्रोडक्शन और बहुत सारे करने में, राइट। सो हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे तो हर दिन नया होता है। थैंक यू सो मच बिंदी। एंड सो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत है, इंक्यूबेटर्स बहुत सारे हैं। जूसेक इन्होंने बताया, आई हब गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंक्यूबेटर है और भी बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो प्लीज़ रीच आउट, आई एम श्योर वी विल फाइंड सपोर्ट अगर आपके पास जज्बा है तो, राइट। ओके, कमिंग बैक, इस बार डॉक्टर धीरेन आपको वेट नहीं कराऊंगी। As a successful medico entrepreneur and senior professional, I'd love to know from you कि आपने अभी अपने पहले वाले आंसर के एंडिंग में बोला था कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हमसे बात करिए, हम आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप चर्चा के लिए तैयार हैं। सो उसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए, अगर हमारे यहाँ बैठी ऑडियंस या बाहर, अगर उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ऑलरेडी हैं या फिर वो आके आपसे समझना चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में किस इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है या आपके प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या हैं, तो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक प्रोसेस दैट यू हैव एट योर हॉस्पिटल which you'd like to share with our young, health-focused and other startups? Yeah, I think so. Processes तो simple है, process आके मिलिए, बात करिए, process चालू हो जाएगा आपका। But एक खाली एक मैसेज ये देना चाहूँगा आपको। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इन अनदर 5-10 years द बिगेस्ट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिगेस्ट एरिया जो होगा वर्ल्ड में, इंडस्ट्री जो होगी, दैट विल बी द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, नॉट IT इंडस्ट्री। इन अनदर 5-10 years द हेल्थ केयर इंडस्ट्री विल बी द नंबर 1 in terms of employment and the revenue generation. So it's a huge area that people you can embark upon and you can really enter into this area. अब इसमें खाली इतना बताऊंगा कि हमारे पास IIM में से भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास IIPH से भी स्टूडेंट्स आते हैं। They come, they observe over here। जैसे कि एक IIM का पूरा ग्रुप आया था कि इमरजेंसी एरिया में क्या प्रॉब्लम्स आती है and how can we sort it out. So what they did is they sat there for 8 days. उनका काम था खाली ऑब्जर्व करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वेयर इज़ द लैग टाइम, वेयर इज़ द इशू, वेयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रीटमेंट इनिशिएशन, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस में इशू आ रहे हैं. So they created a whole questionnaire and then they created also the answers for that. So that is how you can come out with some answers to lot of issues. हम क्या डे टू डे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हम भूल जाते हैं कि इसको इनोवेट करने की ज़रूरत है so that the experience of the patient and the relatives are better. We just go on doing work again and again. But if you people start thinking about this, then definitely you are most welcome. You come down to us. We are there. हमने 3-4 इनोवेटर्स के ऑलरेडी आइडियाज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जैसे EICU है, तो एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जिसने EICU डेवलप किया है, तो वो EICU को हमने इम्प्लीमेंट किया है. एंड वी आर डूइंग ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ दैट, वेदर इट इज़ रियली गुड प्रोजेक्ट एंड वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन ए लार्जर बेस ऑल्सो. सो सिंपल चीज़, आप आइए, मिलिए, हमसे डिस्कस करिए. एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो अवेलेबल हु वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस. आज वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी दुनिया में इतनी सारी है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है. अगर आपके पास अच्छा आइडिया होगा, अगर आपके पास अच्छा सोल्यूशन होगा, तो लेट मी टेल यू, ह्यूज एरिया फॉर यू. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Dhiren. So now you have his word for it, you know. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बायजूस का नाम सुना है? Just raise your hand.
Okay, very good. मुझे, so no prizes for this because I thought as much. Unacademy, physics वाला, सब एक तरह की, okay. Anyway, so I will refrain. Amita ji, coming back to you. Every innovation cannot be a Baiju, an academy, or a physics wala, and rightly so. We don't need too many of those. Most edtech or education technology-based solutions, or without technology as well, they don't even get a chance to showcase their solutions because barrier to entry इतना huge है. सब कुछ फर्म्स ने, कुछ स्टार्टअप्स ने जो कि यूनिकॉर्न्स बन गई हैं, उन्होंने कवर कर लिया है. इसी तरह फूड बेवरेज में जाऊंगी तो कुछ और निकल के आएगा. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. एज समवन who is in a position to get, who has the opportunity to listen to all of these, lot of these new education-based solutions and ideas on an almost like an everyday basis, what would you want to say to these innovative education-based startups who would like to contribute to capacity building and create that social impact and do social good for the larger interests of the children in our country? How can they start off in terms of making their voice heard? उनकी तो बात सुनता भी नहीं है कोई. So how can they make their voice heard? Thank you very much. 1 मिनट का समय दिया है मुझे योगिता जी ने, तो 3-4 बातें क्विकली कह दूंगी, बट वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू इलेबोरेट एंड असिस्ट ऑल ऑफ यू. तो 3 बातें जो क्विकली कहना चाहूँगी वो ये हैं कि एक यूनिसेफ युवा की सहायता से गवर्नमेंट के साथ वंस अगेन मिलकर एक प्लेटफॉर्म है P2E, पासपोर्ट टू अर्निंग. मैं आप लोगों को एनकरेज करूँगी कि आप सब लोग उसमें रजिस्टर करें. उसमें आपको सीखने के मौके भी मिल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं. यू कैन सी व्हाट आर द अवेलेबल पाथवेज. सो इट इज़ P2E प्लेटफॉर्म. उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर हो रहे हैं. तो एक तो ये कि कहाँ आप जा सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, और ये जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उसको भी क्यों जानना ज़रूरी है. एज बिंदी इज शेयर, देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू इनोवेशन फॉर विच आपके अंदर वो स्किल भी तो होने चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन का स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल हो, जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी. रेजिलियंस, यू सेड कितने सारे आइडियाज़ आते हैं और दम तोड़ देते हैं. एवरी डे शी वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस. यस, सो फॉर दैट वी नीड टू बी रेजिलियंट. तो जो ऐसे ये जो जीवन कौशल हैं, आप इनको भी हासिल करें. क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दीज आर एसेंशियल स्किल्स विदाउट विच इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट सर्वाइव. तो इनकरेज ये भी करूँगी कि वहाँ आप एक तरफ तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या, इनोवेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खोजें, पर साथ ही अपनी स्किल बिल्डिंग भी करें. और स्किल बिल्डिंग के लिए टेक्निकल स्किल, नॉन टेक्निकल स्किल सब हासिल करें. टेक्निकल स्किल्स हासिल करने के साथ साथ नॉन टेक्निकल स्किल्स, जैसे मैंने अभी बोला, डिजिटल प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मैनेज कैसे करेंगे आप फाइनेंसेस को, कैसे रीच आउट करेंगे पीपल को, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका. सो लाइफ स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब स्किल्स के बारे में जानकारी हासिल करें. कनेक्ट विद द वर्ल्ड. देन स्कूल सिस्टम में, JUSEC में हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं which can help you build your skills and also link you with the right opportunities in the system. एक और बात कहना चाहूँगी कि इनोवेशन का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ एडटेक ही इनोवेशन है वो ना सोचें. इट कैन बी डिजिटल सॉल्यूशंस, इट कैन बी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और इनोवेशन. जैसे इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बहुत बन रहे हैं. एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, कितने सारे इनोवेटिव मटेरियल्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बैरियर फ्री होगा, लर्निंग मटेरियल कैसे बैरियर फ्री हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल. सो इट कैन बी डिजिटल इनोवेशन, इट कैन बी प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोग्राम इनोवेशन. जैसे कि आपने अभी हमारे ICDS के अधिकारी साहब से सुना कि प्रोग्राम में भी बहुत सारे इनोवेशन करने की संभावना है.
कि कैसे कैसे हम इसकी साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बेटर डिलीवर करा सकते हैं, एजुकेशन कैसे बेटर डिलीवरी हो सकती है। मैडम हमारे पास एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि प्रोग्राम डिज़ाइन में कैसे इनोवेशन आता है, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक से पढ़ाने की बात करते हैं ये, सो दैट इज़ प्रोग्राम इनोवेशन। फाइनेंस इनोवेशन कि अच्छा जो सिस्टम में कैसे कैश पहुँचे, कैसे फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन हो, कैसे इसके बेटर आउटपुट हो। सो think of innovations beyond EdTech also is what I would like to encourage you to think of these. And there are very many portals, UN portals, government portals, जहाँ आप अपनी innovations upload कर सकते हैं, explore कर सकते हैं। UN partner portal एक portal है जिसमें पूरे globe से जो partnership की opportunities होती हैं, आप जाकर देखें कि क्या आप उसके लिए eligible हैं, क्या आप अपनी तरफ से कुछ और इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट यूएन बट देर आर मैनी डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इवन मोर सो who are offering opportunities. So look out for those opportunities but also build your skills to be able to contribute like an innovator. That's all. Thank you. Thank you so much. So I just got, thank you so much Amita ji. P2E is what you said. I hope everybody has noted that down. और स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा इफ़ यू आर ए पोटेंशियल इनोवेटर। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मेरे पास अभी एक मैसेज आ चुका है दैट वी हैव ओनली 10 मिनट्स। सो आई विल से द रिस्कीएस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ टू जस्ट मेंटेन द स्टेटस को। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दें। दैट इज़ द रिस्क आवर नेशन विल हैव टू बेयर अनलेस वी इनोवेट। सो विनय जी, मैं इस बात की शुरुआत आपसे करूंगी। What would you say to the young minds sitting here and outside this room who are evaluating कि या तो हम कोई इनोवेटिव सोल्यूशन, आइडिया, स्टार्टअप, बिजनेस करें या फिर रेगुलर रूट ऑफ 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 भी होता है आजकल, वो वाला फॉलो करें। वो जो लोग असमंजस में हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? Regular 9 to 5 is regular, we have to do, but the innovation is always a new one and we have to accept that we have to do the innovations. So ऐसा नहीं है कि आप हवा सांस लेना छोड़ दें, अपना डेली रूटीन छोड़ दें, 9 to 5 की जॉब छोड़ दें, that you have to do. But innovations will always have a chance to give you something that you feel some joy yourself. For example, in my sense, I will say, I am doing my work 9 to 6, 9 to 7, 9 to 9, whatever the time. But beyond that, I will also making some presentation that will have to present it before the highest authority. So sometimes I enjoying myself, sometimes लगता है कि यार कहाँ का काम ले लिया मैंने, पूरी रात निकल गई. But at the second day, जो भी देखता है वो बोलता है, वाह विनय भाई क्या बनाया, बढ़िया बना. So you will feel the two things that I would like to say. The first one, that the confidence. You will have to have a confidence. मेरे को करना है और मैं कर सकता हूँ मतलब कर ही सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. And the second thing, that the acceptance. Acceptance mean if you have done some mistakes, please accept कि मैंने ये गलती किया है, अब मेरे को ये सुधारना और मेरे को इसको आइडिया भी है कि ये मैं कैसे सुधार सकता हूँ. Now the innovation part, I will summarize myself कि न्यूट्रिशन इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है. मेरे को 10 साल हो गए काम करते करते, बट अगेन आई एम लर्निंग डे एंड डे अगेन कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, कैसे ओवरकम हो सकता है. सो प्लीज़ come to WCD websites. If you are interested in doing some innovations related to nutrition, related to nutritional technologies, please reach to us, then we will brief something. जो अभी मैंने बोला, that is only a 0.001%. Beyond that, you have to study and learn yourself. Thank you. Thank you. Thank you so much, Vinay ji. Prashant ji, coming to you. Same question. आपका क्या विचार है? What would you want to tell these young minds who are evaluating whether to become startup entrepreneurs or go into a job and maybe become entrepreneurs? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि यू ऑल मस्ट थिंक कि भाई आपको कहाँ से हैप्पीनेस मिलता है, राइट? तो हैप्पीनेस विल ऑलवेज मेक यू द ड्राइव.
आप उसमें चलते रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कितना टाइम यू हैव वॉकड ऑन दिस डायरेक्शन. सो डिसाइड कि भाई आपको इस पे हैप्पीनेस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है तो वो डायरेक्शन में आप कितना भी चलोगे आपको कभी थकान नहीं महसूस होगी. अदरवाइज यू थिंक इन भाई थक गए अभी तो इसमें कितना काम करना है और ज़्यादा, राइट. सो इसमें 3 चीज़ें हैं. अगर आपको किसी से बिजनेस लेना है, राइट, या फिर आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आप किसी के और के शूज़ में अपना लेग डाल रहे हो, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी करना चाहते हो उसका स्टडी करो, क्योंकि आप किसी के भी साथ इंटरेक्ट करोगे, कुछ भी बोलोगे, पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू इन द 5 मिनट्स, राइट. तो जो पहले के 5 मिनट है ना, वो इट इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ और एनीथिंग. तो ये 5 मिनट है ना, डिपेंड ऑन योर इंटेलिजेंसी एंड योर एजुकेशन बैकग्राउंड. ये 5 मिनट का प्रिपरेशन आप 5 घंटे में भी कर सकते हो, 5 महीने में भी कर सकते हो और 5 years में भी कर सकते हो, राइट. सो डिजाइन योर ओन साइकिल एंड गो इन दैट डायरेक्शन. क्योंकि आपको अगर कोई भी इनोवेशन करना है, इट इज़ ए कंटिन्यूएशन जॉब, राइट. कहीं पे जाके अटक नहीं जाओगे यार, दिस इज़ द कंप्लीशन. लाइक मैं निकला कि भाई मुझे राजकोट जाना है, देन राजकोट आया तो भाई कंप्लीट हो गया. इट इज़ अ माइल्स जर्नी, इट विल गो ऑन. आप कहीं पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा इससे आगे और भी ज़्यादा है. सो इट इज़ लाइक पिक्स, आपको मिलते जाएंगे, आप चलते जाओगे. थैंक यू सो मच. प्रशांत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जिसमें आपको हैप्पीनेस, जिसमें आपको खुशी मिले वही करें. थैंक यू प्रशांत जी. यस डॉक्टर धीरेन, कमिंग बैक टू यू. सवाल वही है, जवाब आपका चाहिए. मैं ये बोलूँगा कि बीइंग ए कार्डियक सर्जन, हार्ट सर्जन, अगर ईसीजी रहेगा तो लाइफ रहेगी. अगर स्ट्रेट लाइन हो गई यू आर डेड. सो माय टेक इज, if you want to remain youthful till the end, be an innovator. It may be innovation in any field. It is not just in the science or in your field. You can be innovator in your own life also. So be an innovator till the end if you want to remain youth. And Ignite, I would say this young generation sitting over here is full of energy. You should not waste that energy and utilize that energy to remain youthful. And last but not the least, एक ही sentence बोलूँगा, the only constant in your life is the change in your life. So be a change for the society. All right, so innovate and keep your heart healthy and happy, right? That's from the cardiac surgeon here. All right, अमिता जी, वही question और आपका जवाब. Thank you very much. So all that I would like to say is that celebrate failure. Each failure is a next step to your success. Don't get disheartened, celebrate all your failures and look for solutions which are scalable and sustainable. Thank you so much. कहते हैं कि कोई भी जो सक्सेस हमें ओवरनाइट सक्सेस लगती है, उसके पीछे सालों की, महीनों की, हर दिन की स्ट्रगल छुपी हुई होती है. सो लेट्स लर्न टू अपलॉड फेलियर्स. थैंक यू, वेरी वेल सेड अमिता जी. बिंदी, सवाल आपसे भी वही है. ओके, सो मैं क्या बोलूँगी, लाइक क्योंकि मैं तो खुद इनोवेट कर रही हूँ, राइट, जॉब छोड़ के, और मैंने कभी जॉब नहीं की, राइट. सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जॉब करने में खुशी मिलती है, मैं समझ सकती हूँ कि अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन 1000 स्ट्रगल के बाद एक इनोवेट चीज़ करना और उसको आगे ले जाना और उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो खुशी होती है, वो सबसे बढ़कर होती है. Wonderful. Coming from an entrepreneur herself. Thank you very much, Bindi. Now, अभी आपने बहुत देर से 1 घंटे के ऊपर से लगातार इंटरैक्टिव रखा सेशन को, अपलॉड किया है. So one huge round of applause for each one of you. Woo. So thank you, ladies and gentlemen, for being a wonderful audience. I would like to end by reminding you that श्री हरिवंश राय बच्चन ने कभी खूब लिखा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की
वंडरफुल। और ग्रेट, क्योंकि कोशिश करते करते, नाउ लेट मी ऐड समथिंग टू इट। जॉन मैक्सवेल हैं, एक अमेरिकन हैं, उन्होंने, उनका मैं हिंदी अनुवाद करती हूं, जो कहा था, हमने क्या कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी, तो कई बार कोशिश करते करते आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं। तो कोशिश करते रहिए और करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू, आवर पैनलिस्ट हियर, प्रशांत जी, डॉक्टर धीरेन, विनय जी, अमिता जी एंड बिंदी पटेल। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू and to each one of you there. Thank you. And thank you YI for giving me the opportunity to be the moderator today. A huge round of applause for such an energetic panel. यार इतना बड़ा पैनल, इतनी सारी बातें कैसे समराइज करें मैम, सर? How can we started from an entrepreneur, we went to a surgeon, we went to IT, we went to nutrition, we went to education. Everything linked with one, that is बहुत अच्छे सब अटेंडेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक जो अच्छी बात मुझे सबसे ज्यादा लगी was that what Vinay sir said कि 9 to 5 तो रेगुलर है, but what I took away was that your 9 to 5 is your regular, जो सीधा होता है ECG की तरह, but your innovation starts what you do after 5, वो आपका ECG फिर से अप एंड डाउन करेगा। So innovation starts after your 9 to 5. And again, जो मुझे सबसे ज़्यादा समराइज करने में अच्छा लगा वो था खाना, जब न्यूट्रिशन की बात हुई। बड़ा अच्छा लगा सर, थोड़ी और बातें कर ली होती तो भूख लग जाती सर। रोटला फाफड़ा, मतलब फाफड़ा तो नहीं बोला सर आपने, लेकिन रोटला बोला सर। And now, for the respected dignitaries and the panelists over here, I would please like to call you all in front of stage for a group photo.